that, before starting, I'm just showing you the title or the topics which we'll be dealing with today. And I will also be asking you about yesterday class, because I am so proud of all of you. Like, what a amazing response given by the students for the introduction class. So I'm very happy. Thank you so much, everyone, for participating in the homework slot so promptly and so nicely. Thank you so much. Okay, so if anybody has any problem, they can message us about the, if they can't see the shared screen, or if I am not audible to them. Okay, thank you so much. Okay जी, day number 2, giving instructions का मतलब होता है हिदायत. हिदायत कब दी जाती है? कॉमनली तो हमारे जहन में हिदायत का लफ्ज तब आता है जब हम किसी को डायरेक्शंस बता रहे होते हैं, किसी को घर का पता बता रहे होते हैं, तो उस वक्त हम जो है इंस्ट्रक्शंस का वर्ड यूज करते हैं. बट इंस्ट्रक्शन इज अ कॉमन टर्म विच इज यूज कि हम जब भी किसी को कोई ऑर्डर देते हैं या उससे कोई एडवाइस देते हैं या कोई एनकरेजमेंट करते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस की सेंस में आता है. तो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस देने का एक टोटल डिफरेंट तरीका है. तो टुडे विल बी डीलिंग विद दैट. ओके, विल बी डूइंग सम वर्ब्स, क्योंकि देखिए वर्ब्स और नाउन ये दो ऐसे मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके बगैर आपकी कन्वर्सेशन बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होती. टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन शामिल होते हैं. इंटरजेक्शन और कंजंक्शंस जो है और प्रीपोजिशंस, दे आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ज्यादा जो वोकैबुलरी का जो पोर्शन है वो एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, वर्ब और नाउन पे बेस करता है. ठीक है जी, तो विल बी डूइंग दैट. ओके नाउ, सबसे पहले रिकॉल करते हैं व्हाट डिड वी लर्न इन द लास्ट लेक्चर. तो एनीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड जो मुझे बताना चाहते हैं कि कल के लेक्चर हमने क्या कवर, इन अ वेरी ब्रीफ एंड शॉर्ट वे. I want any one of you to come up and please tell me what we have done in our last class, yesterday, day before yesterday's class. Please, आप unmute कर दीजिएगा फहद. Yes, ma'am. Yes. जी मुकद्दस, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जी, आप बताएगा. Yes, ma'am. जी मुकद्दस, what we have done in our last class, day 1 class of marathon 2024 batch 4. Yes, ma'am. इसमें हमने introduction पे किया था. No. Try to speak up in English. If you will not get any word, I'll help you. Okay. Okay. Yes. So we will learn about introduction. How to introduce. Excuse me बेटा, आप पास्ट की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम पढ़ेंगे. मैंने आपसे पूछा है गुजरे हुए, तो आप बोलेंगे वी. आप अगर कहना चाह रहे हो कि वी हैड लर्न, ओके, या ओके पास्ट आप यूज करोगे. We had learned about how to introduce yourself in last class. In formal way or informal way with friends and a person who we don't know about. Okay, very good. Shabash. Yes. Very nice. That's okay. Thank you so much, Mukaddas. Thank you so much. So she was absolutely right. Lastly, we did about formal and informal way of greeting somebody, and we have also done about how to introduce yourself at job places or at you see in a family gathering, or if you're meeting any stranger. So how can you introduce yourself? Okay, now, so today's topic is giving instructions. Okay, so for this today's I'm giving you some more vocabulary. First of all, we'll do the vocabulary and then we'll go slowly towards the topic. The first word in the vocabulary is there any student who can read this for me? Today's words. कोई मेरे लिए read करेगा please? Yes, please raise your hand and take the participant in the class. Yes, anybody else? All. Yes, because I'm going to unmute you. He is behind bars for 20 years. I have only got one shot at this. She is dealing with death in her lines. It was not a goal. It was pure luck.
It was not जी a goal, it was pure luck. Okay. अच्छा जी, अब ये क्या है, ये आपके पास कुछ phrases हैं, ठीक है? इससे इसके अलावा कोई और स्टूडेंट जो वर्ड्स भी रीड करेगा ताकि मैं दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दूं? जी, वर्ड्स रीड करने के लिए प्लीज रेज योर हैंड. थैंक यू सो मच वकास. Yes, Isha, I'm going to unmute you. Yes, Isha. Gaza, alter, grab, full No, no, power, no, Google. no, no, Isha. No, Isha. They are not in this way. You have to read the word and then the meaning. Okay? Okay, miss. Ji. Gaza, Korea, No, it's not alter, Gaza. Canada, Ooh, no, it's not Gaza. It's gaze. case, जी, इसका मतलब होता है Korea, घूरना, घूरना. घूरना, alter, कहना, grip, पकड़ना, full power, खींचना, No, Google, no, no, Google, no, 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 no. Slow down. Slow down. Hold your horse, miss. थोड़ा सा आहिस्ता. आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए. दोबारा से स्टार्ट कीजिए प्लीज. gazette, खोड़ना, alter, Gaze, 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 not Gaza. gaze, gaze, खोड़ना, alter, कहना, grip, पकड़ना, It's full not power, alter. Excuse me. It's not alter. It's utter. Okay? alter, जी, डबल utter, टी है, कहना, डबल टी है. grip, पकड़ना, full No, it's power, not खींच, grape. It's not grape. It's grab. Grab. grab, Yes. grab, पकड़ना, full power, खींचना, Google, Google No, पर it's not तलाश, full power. It's full over. full over, खींचना, Google, Google पर तलाश करना, cancel, मनसूख करना. मनसूख करना, flip, पलटाना, पलटना, improve, improve में किसी वक्त पर No, अमल no, पर it's not लाना, improvement. It's not improvement, my dear. Please गौर से देखिए मेरा बच्चा. It's improvise. And improvise, किसी improvise. वक्त पर अमल पे लाना, जी. draft, बहान जाना, Not draft. It's erratic, drift. Drift. drift, Drift. बह erratic, जाना. मिटाना. Eradicate, mitana. Very good. Okay जी. So now we have done both the phrases and the words. So now I'm explaining you. देखिए यहाँ पे जितने भी words हैं ना, the words which are given in as a vocabulary are verbs. क्या है? Verbs हैं. यानी वो किसी ना किसी action को show कर रहे हैं. सबसे पहले तो आपको ये clear. अच्छा, इसका एक देसी तरीका ये होता है कि हम उसको पहचानते कैसे कि तमाम वो अल्फाज जिनके आखिर में नून अलिफ ना आता है ना, वो वर्ब होते हैं. नाचना, गाना, खाना, बोलना, सोना, रोना, कमाना. ठीक है जी. तो इसी तरह यहाँ आप देखिए जितने भी वर्ड्स हैं सबके आखिर में नून अलिफ ना आ रहा है, तो ये इस बात की निशानी होती है कि किसी एक्शन. अब जैसे मैं बोल रही हूँ बुक, किताब, किताब में कोई नून अलिफ ना तो नहीं आ रहा ना, लेकिन किताब पढ़ना, पढ़ना में ना आ रहा है, तो पढ़ना क्या हो गया? वर्ब है. और किताब क्या हो गया? नाउन हो गया, किसी चीज का नाम हो गया. गेज मतलब होता है घूरना. व्हाई आर यू गेजिंग एट मी? तुम मुझे इतनी गौर से क्यों घूर रहे हो भाई? ओके. अटर, अटर का मतलब होता है कहना. ठीक है. ग्रैब, ग्रैब का मतलब प्लीज ग्रैब एन एप्पल फॉर मी, आई एम वेरी फैमिश. मुझे बहुत भूख लग रही है, देखिए मैं बहुत भूखी हूँ, प्लीज मेरे लिए एक एप्पल जरा पकड़ के ले आना. पकड़ना, जैसे हम कहते हैं ना किसी को, प्लीज ग्रैब माय बैग, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस. मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रहा है, प्लीज मेरा बैग पकड़ के लाओ. ठीक है. तो तेजी में जब हम किसी चीज को उठाते हैं तो दैट्स कॉल्ड ग्रैपिंग. ओके. अच्छा, पुल ओवर का मतलब होता है खींचना. गूगल, गूगल तो माशाल्लाह से ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है. आज तो 2 साल के बच्चे को भी पता है कि व्हाट इज गूगल और उसको गूगल करते कैसे. गूगल बेसिकली एक नाउन भी है, इट्स नेम ऑफ अ सर्च इंजन. और गूगल एक वर्ब भी है, यानी गूगल पे किसी चीज को तलाश करने को भी गूगल कहा जाता है. ठीक है जी. इसके अलावा कैंसिल बहुत कॉमन वर्ड है. कैंसिल मीन्स टू कैंसिल समथिंग, और टू किसी चीज को जो है ना जो होने वाली हो उसको स्टॉप कर देना, मनसूख कर देना. ठीक है जी. फ्लिप का मतलब होता है पलटना. फिर पलटने से मुराद है कि किसी चीज को अपसाइड डाउन कर देना. ठीक है जी. जैसे हम कहते हैं ना यार ये फ्लिप वाला कवर है हमारे मोबाइल का, उसका एक कवर होता है जिससे हम बंद खुल कर सकते हैं. फिर हमारे पास है इम्प्रोवाइज. इम्प्रोवाइज से मतलब होता है इसी वक्त अमल में लाना, फौरन. प्लीज इम्प्रोवाइज माई इंस्ट्रक्शंस राइट नाउ. अभी जो मैंने आपको हिदायत दी उसको अभी उस पर अमल दरामद कीजिए. तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है. ठीक है. फिर हमारे पास है ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना या बह जाना. ये वर्ड कॉमनली हम यूज करते हैं जब हमारे जैसे टैप्स वगैरह लीकिंग होते हैं, हम कहते हैं द टैप इज ड्रिपिंग. ओके. ये ड्रिपिंग नहीं है, ये ड्रिफ्टिंग है, बह जाना. ओके. थोड़ा सा दोनों के मीनिंग में फर्क है. इरेडिकेट का मतलब होता है मिटा देना. इरेडिकेट, इरेडिकेट योर मिस्टेक्स, इरेडिकेट योर किसी भी चीज को टोटल कंप्लीटली खत्म कर देने को इरेडिकेट कह देते हैं. वी नीड टू इरेडिकेट द मिस्टेक्स व्हिच आर रिटन इन द थीसिस. थीसिस में जो मिस्टेक्स आ गई हमें उनको मिटाना पड़ेगा. ओके. आई होप इट्स क्लियर.
नाउ phrases for today. देखिए phrases का मतलब क्या होता है, पहले तो phrases का मतलब समझ लीजिए, because day before yesterday in day 1 class we were just having an introduction in all of you. अब हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी स्लाइड्स को बहुत डिटेल में पढ़ें, ठीक है। अभी मैंने आपको वर्ड्स दिए, पहले एक साइंस समझ लीजिए लैंग्वेज की। लैंग्वेज की साइंस क्या होती है, हमारे पास अल्फाज है, ठीक है ना, उन अल्फाज के कॉम्बिनेशन से फ्रेजेस बनते हैं। फ्रेजेस का मतलब होता है 2, 3 या 4 लफ्जों का मजमुआ। जैसे आपको अंडरलाइन में नजर आ रहा है ब्रेक द लॉ, ये क्या है, ब्रेक एक अलग वर्ड है, दा एक अलग वर्ड है, लॉ एक अलग वर्ड है, इन सब के मजमुए को हम कहेंगे फ्रेज, ठीक है जी। इसी तरह बिहाइंड बार्स, इसमें बिहाइंड और बार्स दोनों अलग वर्ड है, बिहाइंड प्रीपोजिशन है, बार्स नाउन है, उन दोनों को मिला दिया तो ये हमारे पास। अच्छा, इट इज एन आइडियल वे टू मेक योर इंग्लिश बेटर इन अ वेरी शॉर्ट टर्म, कि आप लफ्जों की मीनिंग याद मत करें, आप लफ्जों को फ्रेजेस के साथ याद करें। फ्रेजेस के साथ याद करने का मतलब ये कि पूरे पूरे जुमले, ये पूरे पूरे 5-6 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन याद करें, इससे आप ज्यादा जल्दी इंग्लिश सीखेंगे। इसका रीजन ये होता है कि जब आप अल्फाज याद करते हैं ना, तो वो आपके ब्रेन को रिकॉल करने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप फ्रेजेस याद करते हैं तो वो बहुत आसानी से आपका ब्रेन रिकॉल कर लेता है, ठीक है जी, ऐसे ही होता है ना, ठीक है जी। ओके, द फर्स्ट वन इज डोंट ब्रेक द लॉ, मतलब कानून की खिलाफ वर्जी मत करो, ये क्या है, इट्स एन ऑर्डर। ओके, he is behind bars for 20 years। देखिए behind bars का मतलब होता है सलाखे, बार्स होते हैं ना, बार, किसी भी लंबे डंडे को भी हम बार कहते हैं, ठीक है। तो बार का मतलब होता है, जब हम फ्रेज के सेंस में लेते हैं तो ये जेल की जो सलाखे हैं उनके लिए, he is behind the bars, वो जेल की सलाखों के पीछे है, for 20 years, 20 साल से। ओके, नेक्स्ट वन, आई हैव ओनली गॉट वन शॉट एट वंस, मुझे इसमें एक मौका मिला। One shot is basically a short form for opportunities, okay, and or chances। इसके लिए आप कैसे, प्लीज गिव मी वन मोर शॉट फॉर द एग्जाम। आप मुझे एग्जाम, आपने एग्जाम में जो एग्जामिनर है उसने आपसे कॉपी खींच ली, टाइम शॉर्ट था, तो आप बोलेंगे प्लीज गिव मी सम टाइम, आई जस्ट नीड वन शॉट, यानी कि मुझे सिर्फ एक मौका और दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह ताला अपने एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लूंगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज शी इज डीलिंग विद डेथ इन हर इलनेस। अच्छा, एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इलनेस और सिकनेस में थोड़ा सा फर्क होता है। सिकनेस जो होती है वो शॉर्ट टर्म बीमारी होती है, आपको थोड़ा सा फ्लू हो गया, आपको थोड़ा सा बुखार हो गया, तो दैट इज योर सिकनेस, ठीक है। बट खुदा ना खास्ता अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला है काफी अरसे से, तो वो इलनेस कहलाती है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, इसके लिए एक बहुत अच्छा ईडियम भी हम यूज करते हैं, अगर आपको कोई हल्की फुल्की बीमारी हो रही है तो आप कह सकते हैं, आपके ऑफिस से फोन हो गया कि भाई व्हाई यू आर नॉट प्रेजेंट टुडे मिस्टर जॉन, why are you not in the office today? So you can answer back, or you can reply in a polite way that I was a bit under the weather। मैं थोड़ा सा, यानी कि मौसम के असरात मुझ पे थे, यानी कि मुझे हल्का फुल्का नजला या बुखार हो रहा है, तो आप उसको इससे कह सकते हैं। अच्छा, आई विल हाईली अप्रिशिएट इफ ऑल ऑफ यू कीप अ नोटबुक, क्योंकि देखिए मैं स्लाइड के अलावा भी आपको बहुत सारी वोकैबुलरी और चीजें बताना चाहती हूँ, ठीक है ना, और टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, तो मेरी रफ्तार तो बहुत तेज है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग एक कॉपी, नोटबुक और एक पेन पेंसिल अपने पास जरूर रखा करें, जो चीज आपको लगे कि, क्योंकि देखिए जब मैं आपसे टेस्ट लूंगी इन द क्लास, तो मैं वो भी पूछूंगी जो मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ स्लाइड से टेस्ट नहीं लूंगी, रिमेंबर दिस। सो यू सी, मेक बकल अप योर बेल्ट्स, ओके, टाइट अप योर सीट बेल्ट्स, इतना आसान नहीं होगा आपको टेस्ट देना, तो बहुत ही फोकस्ड होके और बहुत गौर से सुने कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव गॉट इट वाज नॉट अ गोल। अच्छा, अब आपके ध्यान में आ रहा होगा फुटबॉल का गोल, तो गोल का मकसद सिर्फ फुटबॉल वाला गोल नहीं होता, गोल का जो इंग्लिश में गोल हम जिंदगी के मकसद को भी कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज योर फ्यूचर गोल्स, आपके जिंदगी के और क्या इरादे हैं या क्या प्लान्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोल हो रहा है, इट वाजंट अ गोल, इट वाज प्योर लक। उसने कहा ये कोई मेरा मकसद नहीं था, लेकिन ये मुझसे हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो नॉर्मली अपने इंटरव्यू सेलिब्रिटीज दे रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम say this thing in their interviews that you see, we were not by choice we have come to this profession, but it was pure luck, ये किस्मत थी जो हम आर्टिस्ट बन गए। okay, okay, now we have got the definition of verb which I have already explained you, but I will love to explain it again, okay। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो फाहद साहब आप प्लीज मुझे, शानजे ने हाथ उठाया है, शानजे, एंड इसके बाद हमारे पास इकरा भी है। सर, अगर मैं ये स्लाइड पे थोड़ा सा रुक रही हूँ, अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, उनको अनम्यूट कर दीजिए। Yes, Sanjay.
अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हो शानजे बच्चा? Alhamdulillah. How are you? I'm fine. Not looking good in the screen. Okay. Yes, you are looking good. Thank you. Thank you. I don't have any I don't have any question. Basically, I raised hand when you have asked about who will read the phrases. So that's why at that Chalo, time I okay, have okay. Now, raised my Mr. hand. Okay, Mr. Okay. Fahad, just note down her name for the next task. She will be doing the next task. Okay, Shanzi? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Okay, okay, fine. Okay, so now we are coming towards the verb. What are verbs? अच्छा देखिए, verbs जो है, verbs are words that show an action, जैसे मैं आपको पहले बता दूं, or state of being existing. Okay, exist. Almost every sentence requires a verb. Without a verb, you cannot explain or you cannot say anything. जब तक आप कोई, देखिए हम जितनी भी बातें करते हैं, अगर आप उन पे गौर करें तो उनमें डोमिनेंटली दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं. एक वर्ब काम कर रहा होता है और एक नाउन काम कर रहा होता है. चीजों के नाम और हम कर क्या रहे हैं वो एक्शंस के नाम, यही दो चीजें डोमिनेट कर रही होती है. ठीक है. अच्छा, तो हमारे पास एक्शन वर्ब्स हैं और हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स हैं. ठीक है. एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कोई ना कोई एक्शन शो कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है वॉक, रन, स्टैंड, क्राई, रीड, लाफ, प्ले, राइट, थिंक, जंप. ठीक है. जबकि स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं, जिनको हमें याद रखिए, स्टेटिव वर्ब्स और जो आपके स्टेट वर्ब्स होते हैं ये एक ही चीज है. प्लीज नोट इट डाउन. स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स, दे बोथ आर द सेम थिंग. आप इसको स्टेट वर्ब्स भी कह सकते हैं. नोट डाउन प्लीज, जॉट इट डाउन इन योर डायरी. इट कैन बी आस्क्ड. Stative verbs and state verbs, they are the same things. Okay, and they are the type of the verb that expresses a state of being, condition or situation. They describe a static condition, इमोशन और रिलेशनशिप. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो आपके जितने भी होते हैं, जैसे हेट, लव, वांट, नीड, अंडरस्टैंड, ये सब आपके क्या होते हैं? स्टेटिव वर्ब्स होते हैं. और ज्यादातर जो आपके स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, एक्सक्यूज मी, जी, जो आपके स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ये आपके इमोशंस और स्टेट ऑफ बीइंग, ओपिनियंस वगैरह को शो करते हैं. ठीक है. और इसके अलावा ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस को भी शो करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हमारी स्लाइड पे, इज और एम, ये सारे आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स ही कहते हैं आसान अल्फाज में. ठीक है. अपीयर, बिकम, फील, ग्रो, लुक, रिमेन, सीम, साउंड. देखिए ये किसी प्रॉपरली किसी एक्शन को शो नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल साउंड, साउंड किसी एक्शन को शो नहीं कर रहा. ठीक है. लेकिन ये एक वर्ब है. ओके. स्मेल, जितने भी सेंसेस, इमोशन और पोजीशन से रिलेटेड होते हैं वो स्टेटिव वर्ब्स कहलाते हैं. ठीक है जी. आई होप इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं. अच्छा, जनरली आप जब हम छोटे होते हैं इन योर स्कूल, वी आर बेसिकली टॉट दैट देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. लेकिन अब हम एडवांस लेवल पर हैं तो देयर आर नॉट 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. वी विल बी डिस्कसिंग 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. कितनी फॉर्म्स? 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. राइट. अच्छा जी, सबसे पहले जो आपके पास आती है वो कहलाती है बेस फॉर्म. बेस फॉर्म बेसिकली इंपैरेटिव सेंटेंसेस में यूज होती है जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं. ठीक है. या कोई सजेशन या इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट्स डू इट. तो डू यहाँ पर क्या है? ये आपका बेस फॉर्म है. पॉलिश माय शूज, पॉलिश माय शूज. ब्रिंग मी वाटर, ब्रिंग मी वाटर. डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर. ओके. तो ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सब क्या है? बेस फॉर्म है. क्यों? क्योंकि ये कोई ना कोई ऑर्डर दे रहे हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है वो जर्नल होती है. जर्नल से मुराद ये है कि जो आपकी नॉर्मल जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं. इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल, I go to the park, you eat all the cookies, we play football, they hide the blanket, Noman and Ajaz buy ice cream. अच्छा, अब ये वर्ड्स आप देख सकती हैं कि they are purely एक्शन वर्ड्स. ये क्या है? टोटल आपके पास एक्शन शो कर रहे हैं. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको टेंसेस बहुत अच्छी तरह आते हैं? प्लीज आंसर मी. कितने लोग हैं जिनको टेंसेस बहुत अच्छी तरह आते हैं? एनीबॉडी जो समझता है कि उसको बहुत अच्छे टेंसेस आते हैं, प्लीज रेज योर हैंड. Shanze.
Is there जी anyone else? Please raise your hand. Okay. ओके, मुकद्दस। शाबाश मुकद्दस, गुड। और इसके अलावा हमारे पास कौन है? Yes, Waqas. ठीक है, वेरी गुड। No, ma'am, no, Waqas did not raise the hand. I'm asking for the from the अच्छा, Waqas. ओके, मैं समझी वकास साहब ने भी किया है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर। देखिए, मैं यहाँ पे एज अ डॉक्टर काम कर रही हूँ, और जब तक मुझे आपके मर्ज की गहराई का अंदाजा नहीं होगा तो इलाज मुश्किल है। ऐसे ही है। ओके, ठीक है जी, ठीक है जी। दे हाइड इन द ब्लैंकेट, नोमान एंड एजाज बाय आइसक्रीम। ओके, तो इसका मतलब है मैं थोड़ा सा आप लोगों को टेंसेस का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ वर्ब्स के साथ देती जाऊंगी, ठीक है। पहले हम ये स्लाइड कंप्लीट करते हैं, एंड में मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन जो है आपको टेंसेस पे दे दूं। ओके, नाउ देन वी हैव गॉट एस एंड ईएस वर्ब्स। एस एंड ईएस वर्ब्स वो होते हैं, देखिए, जब हम जुमला, आपने गौर किया कभी हम बोलते हैं कि शी टीचेस इंग्लिश एंड आई टीच इंग्लिश। आई के साथ हम एस नहीं लगाते, ईएस या एस नहीं लगाते वर्ब में, जबकि शी के साथ, ही के साथ हम लगाते हैं। ही ड्राइव्स कार, ही ड्राइव्स, ओके, ही ड्राइव्स, एस आ रहा है। जबकि अगर मैं आई या वी ड्राइव, दे ड्राइव, आई ड्राइव, सना ड्राइव, अस्मा ड्राइव, असलम ड्राइव, जितने भी सना असलम इस सब में एस आएगा। जबकि जो प्लूरल वाले होंगे, ठीक है ना, तो ये एक कैटेगरी वाइज हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जर्नल और एस और ईएस वर्ब्स में, ठीक है। ये जब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कराऊंगी तो वो आपको फिर प्रॉपर्ली समझ में आएगा इसमें, ठीक है। अभी आपके लिए सिर्फ ये याद रखना बेहतर है कि जो आपके पास प्लूरल नेम्स होते हैं, जिनमें आई आई है तो सिंगुलर, लेकिन ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि एक्सेप्शनल केस है। जैसे होते हैं ना क्लास में 20 बच्चे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते जो रूल्स फॉलो नहीं करते, तो ये आई भी वो शरारती बच्चा है जो कि रूल्स फॉलो नहीं करता, ठीक है जी। इसके साथ उसूलन तो एस ई एस आना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते। आई प्ले क्रिकेट, आई रीड बुक, ओके। अच्छा, इसी सिमिलरली फिर वी वे ये सब प्लूरल है। एस और एस में हमारे पास सिंगुलर इट शी और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट का नाम, कोई एक चीज हो, कोई भी हो सकती है वो, ठीक है। तो उसके साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू द पार्क, अभी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है तो हमने वर्ब में क्या कर दिया, ईएस लगा दिया। अच्छा, एस और ईएस लगाने की भी एक रीजन है, वो पूरा एक डिटेल लेक्चर है। कुछ पर्टिकुलर एंडिंग्स होती हैं जिसमें हम ईएस लगाते हैं, जिसमें सी एच, एस एच, एक्स, ओ या एस, अगर किसी वर्ड के आखिर में ये वर्ड्स आ रहे होते हैं तो उनमें हम ईएस लगाते हैं, एस नहीं लगाते, बाकी तमाम में एस लगाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाइए, बड़ी मासूम सी फॉर्म है, मेरी फेवरेट है क्योंकि सिर्फ अपने ही टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, इसके अलावा सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास पार्ट पार्टिसिपल्स है, जिसे हम आसान जबान में थर्ड फॉर्म कहते हैं वर्ब की। ये हमारे जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हो, चाहे वो पास्ट के हो, चाहे वो फ्यूचर के हो, ये वहां पे यूज होता है। ये कंप्लीशन ऑफ वर्ब, वर्ब को जाहिर करता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। जैसे ही हैज गॉन टू द पार्क, वो जा चुका है। शी हैज ईटन ऑल द कुकीज, वो तमाम बिस्किट खा चुकी है, ठीक है। यू हैव प्लेड फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल चुके हो। दे हैव हिडन इन द ब्लैंकेट, वो कंबल में छुप चुके हैं, ठीक है जी। छुप छुपे थे, अगर हैड होगा तो थे आएगा, हैज और हैव होगा तो है आएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो हमारे पास है जनाब आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है जी। पास्ट पार्टिसिपल है हमारे पास। पास्ट पार्टिसिपल में हमारे पास क्या चीज है, पास्ट में हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म है विद आईएनजी उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और जो थर्ड फॉर्म है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसको थोड़ा सा गौर से याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप चाहते हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। The third form of the verb is called the past participle, and the first form of the verb plus ing, which is often known as the continuous form, ing form, is known as present participle. For example, he is going to the park. He is going to the park. She was eating all the cookies. You were playing football. They were hiding in the blankets. Okay, okay जी सर। फहद, अगर किसी का कोई सवाल है इस स्टेज पे तो प्लीज मैं सवाल लेना चाहूंगी। Yes. Anybody else any question? Please raise your hand. Don't need to be hesitate. If you are hesitating right now, so you will hesitate the whole life. So please try to ask the question. कोई मसले वाली बात नहीं है, गलत पूछ लें सवाल, कुछ भी पूछ लें मैम से सवाल। ठीक है, सवाल पूछना इस बात की निशानी है कि आपने मुझे सुना है,
ठीक है ना, और आपने समझने की कोशिश की है। दुआ Okay, फातिमा, Samsung. दुआ फातिमा। Okay, her name is Dua Fatma. Okay, I'm going to. Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू दुआ? I am fine, ma'am. जी बच्चा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैम आपने अभी ES वाला समझाया, वो आप दोबारा समझा देंगे, सिंगुलर नेम्स वाला जिसमें विद ही, शी और इट लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल समझा देंगे आपको, उसमें कोई वो नहीं है। देखो मेरा बेटा, दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है जो सिंगुलर होता है, यानी कोई भी एक चीज, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं, तो ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। सना, शबाना, अस्मा, अली, एक एक चीज का हम ला रहे हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान सिंगुलर है, तो उसमें बहुत सारे मुल्कों का नाम नहीं ले रहे। इसी तरह कुछ सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, मसलन फॉर एग्जाम्पल वी, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। आपने कभी उर्दू में हैं और हैं का इस्तेमाल सीखा है? ये सेम ऐसे ही है, ठीक है। यस मैम। तो एस और ईएस जो है, ये हम उन वर्ब्स के साथ उन सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं जो सिंगुलर हो और लगता है ये वर्ब के अंदर है। जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस हम, आप यहाँ देखो, ही गोज, ये नजर आ रहा है जो मैंने हाईलाइट किया आपको? यस मैम। जी, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ गो वर्ब था जिसमें मैंने ईएस लगाया। क्यों? क्योंकि मेरा रूल ये कह रहा है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाम हो, सिंगुलर नेम हो, तो आप उसमें एस या ईएस लगाएंगी। तो अच्छा, दूसरा मैंने आपको ये बताया। अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि मैं कब एस लगाऊं और कब ईएस लगाऊं। Yes, फॉर ma'am. एग्जाम्पल, जैसे यहाँ शी में मैंने ईट्स के साथ क्या लगाया, एस लगाया। प्लेज में भी मैंने एस लगाया और हाइट्स में भी मैंने एस लगाया, जबकि ओनली गोज में मैंने क्या किया है, ईएस लगाया। तो इसका एक सिंपल रूल ये होता है कि हमारे पास 5 वो है। जैसे च का मतलब होता है कोई भी वर्ब, वो अगर सी एच पर, उसके आखिर में सी एच आ रहा हो, ठीक है, आप नोट डाउन कर ले दुआ बेटा, सी एच आ रहा हो या एस एच आ रहा हो या ओ या डबल ओ आ रहा हो, ठीक है। इसके अलावा उसके आखिर में एक्स या एस, ये पांचों में से अगर कोई वर्ड्स आ रहे हैं तो आप उसमें ईएस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टीच, टीच के आखिर में क्या आ रहा है, TEACH, CH आएगा तो हम उसमें टीचेस, जब हम उसमें एस नहीं लगाएंगे हम उसमें ईएस लगाएंगे। ओके, समझ में आ गई ये बात? ठीक है, तो ये सही है। ये बेसिकली सिंगुलर प्लूरल का एक छोटा सा टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आपको ड्यूरिंग द क्लासेस को कर दूंगी, ठीक है दुआ? I hope your Thank question, I hope your question is answered. Thank you. Anybody else? Okay, so I'm moving to the next slide. Now, there are two types of verbs, regular verbs और irregular verbs. ये जो division है, ये जो bifurcation है, this is done on the basis of forms of verb. Forms of verb वैसे तो और भी हैं, लेकिन ये these are the basics on regular, irregular, simple. Regular वो verbs होते हैं जिनके आपके पास जो second और जो third form होती है वो क्या होती है, सेम होती है। फिर से मेरी बात सुनिएगा, ये जो ग्रीन से लिखे हुए ना, ये रेगुलर वर्ब है, ठीक है जी, सबको नजर आ रहा है? जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है, और 95 केसेस में इनके आखिर में ई या डी या ईडी लगने से ये सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी जो कैटेगरी है, दिस इज लाइक येलो कलर, व्हाट आई मस्ट से, ये जो ऑफ वाइट सा कलर में जो ये लिखा हुआ है, ये इररेगुलर वर्ब्स है। इररेगुलर वर्ब्स का मतलब क्या होता है, इनकी सारी फॉर्म्स आपस में कुछ लॉजिक नहीं होती, डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, कम, उसके बाद केम और फिर दोबारा कम आ गया। बिगन, बिगन और बिगिन, बिगन और बिगन, तीनों अलग है। यहाँ पे GIN है, यहाँ GAN है और यहाँ पे GUN है, ठीक है जी। इसी तो इररेगुलर वर्ब में फॉर्म्स में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इररेगुलर में एक कैटेगरी बहुत ही मजे की है और वो है लास्ट वाली कैटेगरी। आप देख रहे हैं ये वाली, ये कट और कॉस्ट देख रहे हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी सारी फॉर्म्स एक जैसी होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मसलन हिट है और HIT हिट, पुट है, कट है, इन सब की क्या होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सारी क्या होती है, एक जैसी होती है, ठीक है जी। आप लोग चाहें तो एक छोटा सा एक होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए कि जो आपका ग्रुप है उसमें सब लोग कोई से भी 5 ऐसे वर्ड्स भेजेंगे जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, एक जैसी होती है। नोट डाउन कर लिया सबने? चले, मैं 2 मिनट दे रही हूँ, उसको नोट डाउन कीजिए। आपको फर्स्ट होमवर्क एक्टिविटी क्या है कि आपको कोई भी ऐसे 5 वर्ब्स बताने हैं
जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, ठीक है, वो इरेगुलर वर्ब्स होंगे और सारी फॉर्म सेम होंगी। ओके जी, अब आ जाइए आप नेक्स्ट गिविंग इंस्ट्रक्शंस के टॉपिक के। बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती क्या, टेलिंग समवन व्हाट दे शुड डू और मस्ट डू, ठीक है। शुड का मतलब है क्या उनको करना चाहिए, और मस्ट का मतलब है जरूर करना चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। और अगर मैं कहूँ यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें हर हाल में अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, ठीक है। मस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ये बहुत ज्यादा एम्फसाइज को शो करता है, जबकि शुड में थोड़ी सी पोलाइटनेस है कि ठीक है अगर तुम करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, मैंने अपनी आपको राय दे दी है, ठीक है। यू शुड नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक ऑफ द ट्रुथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई केस हो गया है जिसमें आप जज के सामने खड़े, तो वहां पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि यू शुड नॉट टेल अ लाई और यू शुड स्पीक द ट्रुथ, बल्कि मैं वहां बोलूंगी यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल आ गया। तो मस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा गिविंग एन ऑर्डर और कमांड, किसी को ऑर्डर देना या कमांड देना, ये भी आपके इंस्ट्रक्शंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शॉर्ट ऑर्डर्स की बात करूं, सिट डाउन, डोंट बी लेट, ठीक है, ये आपकी शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस है। इसके अलावा अगर मैं एडवाइस, अच्छा हमारे पास दो चीजें, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड सजेशन, प्लीज रेज योर हैंड। एडवाइस और सजेशन में क्या फर्क होता है? एनीबडी? जी फहद साहब, एडवाइस और सजेशन में फर्क पूछिए किसी स्टूडेंट से। Yes, please. Is anybody else want to give the answer? भैया आज क्लास में कहा है ये हजरात कहाँ चले गए भाई, सारे सिर्फ वकास ने पार्टिसिपेट किया, where are the other gentlemen, please? Yes, Mustafa Gentleman साहब. come up, yes, wow, that's good, come मुस्तफा जी। इस कवि मुस्तफा साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. कवि साहब फरमाइए, सजेशन और एडवाइस में क्या फर्क होता है? Yes, कवि साहब. Hello, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह, we are fine sir. I am good. Actually, advice ये होती है कि किसी को किसी चीज के बारे में समझाना होता है कि ये चीज गलत है, ये आप ना करें। ठीक है, मतलब कि जैसे कि कहते हैं कि एडवाइस जैसे कहते हैं कि डू नॉट टच योर डू नॉट टच वेरी डेंजर्स। okay, do not touch anything which is danger, right? Okay, अच्छा, Danger. और सजेशन का फिर क्या होगा सर? सजेशन का ऐसा होता है किसी को समझाना होता है कि कहते हैं कि प्लीज केयरफुली वर्क। ओके, थैंक यू सो मच कवि साहब फॉर द पार्टिसिपेशन। ठीक है, आपका जो वो है बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें एक एडिशन कर देती हूँ। देखिए, एडवाइस वो होती है जो बड़े अपने छोटों को देते हैं, और जब छोटे कोई अच्छी बात बड़ों को बताते हैं तो उसे हम सजेशन कहते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, गुड वन। ओके, तो एडवाइस यहाँ पे है, डोंट ड्रिंक अल्कोहल, डोंट ईट हैवी मील्स। ओके, जो डाइटिशियंस होते हैं ना, वो अक्सर अपने जो कस्टमर्स हो रहे होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको कहते हैं प्लीज डोंट टेक हैवी मील्स आफ्टर 6 आफ्टर 7, क्योंकि वो एक्युमुलेट हो जाएगा आपके स्टमक में और आपको फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा होता है ना। सो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग फ्रॉम देयर, don't eat heavy meals, it's an advice, right? Okay, then we have got instruction, open the packet, take out the device, then put, ये कहाँ पे लिखे होते हैं? जब हम अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं किसी भी चीज की, Amazon से या अलीबाबा से जब हम कोई चीज मंगवाते हैं, तो उसपे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, ठीक है, वो लिखा होता है कि किस तरह पैक को ओपन करना है, किस तरह इंस्टॉल करना है, अगर वो कोई चीज है इस तरह, ठीक है, तो उसको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। देन वी हैव गॉट वार्निंग्स कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको किसी भी खतरे से वक्त आने से पहले बता दी जाती हैं, ताकि जैसे हमारे यहाँ बीमारी के बाद हम इलाज करते हैं, लेकिन बीमारी होने से पहले हमारे पास एक चीज होती है वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन क्या होता है? बेसिकली हमें खुदा ना खास्ता वो बीमारी होती नहीं, हमें नाउजुबिल्लाह कोविड हुआ नहीं, लेकिन हमें पहले से कोविड की वैक्सीन लगा दी गई। ओके, तो ये जो वार्निंग्स होती है ना, ये भी एक तरह की वैक्सीनेशन होती हैं कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो, सो बिफोर द एक्सीडेंट टू हैपन दे जस्ट गिव्स अस वार्निंग। ओके, फॉर एग्जांपल वॉच आउट इफ द फ्लोर इज वेट, लुक आउट। ओके, कोई अगर वो है, और इवन रोड्स पे जो आपके जो वो होते हैं साइन बोर्ड्स होते हैं,
उस पे अक्सर इस तरह की होती है कि आगे रैम्प है या डेंजर है या कंस्ट्रक्शन जारी है, तो इनको हम वार्निंग्स कहते हैं। देन वी हैव गॉट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि भाई प्लीज हेल्प मी, डोंट स्पीक, प्लीज, इस तरह जो हम करते हैं रिक्वेस्ट, पोलाइट वे में किसी से कोई बात मनवाने को रिक्वेस्ट कहा जाता है। देन वी हैव गॉट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। एक देखिए, एक क्वेश्चंस की बहुत सारी टाइप्स हैं। एक क्वेश्चन जो अगर मैं ग्रामेटिकल बात पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो एक सवाल होता है ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड सवाल। ओपन एंडेड सवाल इस तरह होते हैं जिसमें आपको और मजीद बोलने की बहुत सारी गुंजाइश होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आपने आज क्या खाया, ठीक है, तो आपके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या आपने खाना खाया, तो आपके पास एक ही जवाब है कि या तो हाँ या तो ना, ठीक है। तो दो तरह के सवाल होते हैं। एक होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आर यू हैप्पी, आर यू गोइंग, इज शी ईटिंग द फूड, shall we be meeting tomorrow, ठीक है। जो कि हेल्पिंग वर्ब, जो अभी हमने हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ा, एक्सिलरी वर्ब्स उनसे शुरू होते हैं। और जो दूसरे वाले होते हैं वो किसी एचडब्ल्यू वर्ड से शुरू होते हैं। एचडब्ल्यू वर्ड्स हमारे पास 5 है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, और हु, ठीक है। ये 5 हमारे पास एचडब्ल्यू वर्ड है कि व्हाट आर यू डूइंग, हु इज ही, ओके, when will you go to your when you will go to Canada। तो ये जो जितने भी सवालात होते हैं ये क्वेश्चंस में आते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ और एग्जांपल्स है। आई वांट एनी स्टूडेंट, ओके सर, जरा फाज साहब जरा उन स्टूडेंट को बताएं जो बिल्कुल खामोशी से कैमरा और माइक सब बिल्कुल बंद करके आराम से बैठे हुए हैं, जरा उनको जगाइए और जरा मुझे रीड करवानी है स्लाइड्स प्लीज। जी, तो कौन आना चाहता है भाई, प्लीज रेज योर हैंड। Wajiha, you're not participating today. Shall I unmute you? Wajiha, please participate करें। Assalamualaikum. Walaikum assalam. Thank you, Wajiha. Okay, dear, I want you to please read this slide of some more examples. मैं रीड करूं? जी जी जी, read कीजिए slide, please. Some more examples. Giving orders. Positive. Base form of the verb plus noun adjective. Be quiet. Follow the instructions. Listen to me. Sit down here. Sit down here. Okay, thank you, Wajiha. So now, do read the other examples also. You have to read the whole slide, okay? आगे भी मैं पढ़ूं मैम? जी जी, we are waiting for you, Wajiha. Giving orders. Negative. Don't base form of the verb plus noun adjective. Don't make me angry. Don't call me after 11 p.m. Don't disturb me. Don't limit. Don't cross your limit. यानी कि अपनी हुदूद से आगे नहीं बढ़ो। थैंक यू सो मच वजिया, थैंक यू सो मच। ओके ओके जी, सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है। I think we need to take the Ikra as well. Yes, Now, Ikra? so you see, we have, sir, some more slides. We'll be taking Okay, Ikra for okay. the next slide, okay? Okay, ma'am. Okay. Now we have some advice to do. And देखिए, advice दो तरह की होती हैं। एक तो होती है जब आप किसी को किसी काम करने का कह रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे आप किसी को रोक रहे होते हैं। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एडवाइस, टू डू एंड नॉट टू डू। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है जी। ओके इकरा, नाउ यू कैन रीड द एग्जांपल्स प्लीज। Ikra, please unmute yourself. Yes, Ikra. Can you hear me? Okay, ma'am, we can take the another person. Yes, Miss Yasmin. Miss Yes, Yasmin, sir. can you hear me? Yes. जी यास्मीन। Advice to do. Examples: drink water. Always drink water. Hello Okay. others.
always help others, work hard, always work hard, be honest with yourself, be kind to others, be calm in all situations, be nice to others. Very excellent, Structure, excellent. Shabash. structure, base verb, and be plus adjective. Okay, now read the second one. Advice, Advise not to do. yes. Advice not to do. Don't drink, wreck, Yes. don't underestimate others. Don't get stressed over little worries. Avoid looking at others. Advice going to every time. Avoid eating junk foods. Avoid drinking cool water at nights. Don't plus base form and avoid plus verb and ing. Okay. जी अच्छा जी अच्छा सो देखिए मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवाइसेस ठीक है लाइक टू डू एंड नॉट टू डू ओके टू डू में आप ऑर्डर देते हैं लेकिन इसमें भी दो तरह की कैटेगरीज एक होता है जिसमें आप डायरेक्ट वर्ब से अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ऑर्डर हेल्प अदर्स वर्क हार्ड ठीक है स्पीक द ट्रूथ और ड्रिंक वाटर ड्रिंक ठीक है तो ये आपने इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है बेस फॉर्म यानी जो मेन फॉर्म है उससे ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लेकिन जो आप लास्ट के 4 सेंटेंसेस देख रहे हैं इसमें आप अच्छा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अच्छा मुझे कोई बेहतरीन तरीके से एडजेक्टिव्स डिफाइन कर सकता है यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं एनीबॉडी मर्द Please हजरा raise your hand, please. मर्द हजरात जरा जागिए शाबाश Yes, वकास, वकार, वकार, वकार मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. जिसकी तारीफ की गई हो वो अल्फाज जिनकी तारीफ की गई हो आगे दोबारा इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करें दोबारा से बोलें जरा वो ऐसा वर्ब जिसकी कुछ सिफात कुछ सिफ्त बयान की गई हो ऐसा वर्ड जी अच्छा ठीक है ओके ठीक है अच्छा थोड़ा सा मैं इसमें और जरा एक थोड़ा सा टेक्निकल वे में आपको समझा देती हूँ कि देखिए एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन होते हैं नाउन होते हैं किसी भी चीज का नाम ठीक है ना नाउन में दुनिया की हर चीज का नाम आ जाता है ठीक है इसकी 5 कैटेगरीज होती हैं जिसमें कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन शामिल है ठीक है इन नाउन्स को बाजों का फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक सिंपल सी जो छोटी क्लासेस में जैसे आप पढ़ते हैं उसमें समझाऊं जैसे लिखा हो कि भाई असलम वकास का ही एग्जांपल ले लेते हैं वकास अहमद साहब जो हैं वो कराची में रहते हैं वकास अहमद साहब फला जगह जॉब करते हैं वकास अहमद साहब के 2 बच्चे हैं वकास अहमद साहब जो हैं बाहर मुल्क जाना चाहते हैं अब इतनी दफा ये वकास अहमद साहब जब मैं आपसे बोलूंगी तो आपकी कम्युनिकेशन की खूबसूरती क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम नाउन को कुछ खास वर्ड से रिप्लेस करते हैं जिनको हम प्रो नाउन कहते हैं यानी नाउन को रिप्लेस कर देते हैं वो वर्ड्स ठीक है मसलन मैं बोलूंगी कि वकास साहब इस्लामाबाद कराची में रहते हैं वो फला जगह पे जॉब करते हैं उनके 2 बच्चे हैं वो सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो वो उनके ये सब जो अल्फाज है ना ये आपके प्रोनाउंस है तो 2 चीजें आपने समझनी कि नाउन क्या होते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं अब एडजेक्टिव्स जो होते हैं एडजेक्टिव्स को हम उर्दू में कहते हैं सिफ्त अच्छा सिफ्त में भी 5 चीजें हैं आप ये लेक्चर रिपीटेडली देखेंगे बच्चों क्योंकि मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रही हूँ लेकिन आप लोग परेशान नहीं हो ये क्लास में इतनी दफा रिपीट होंगी ये चीजें इंशाल्लाह ताला कि आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी बट व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू जस्ट सी द वीडियोस अगेन एंड अगेन सो दैट यू विल गेट द कॉन्सेप्ट इफ यू आर नॉट jotting down anything right now during the class so you must go to the video after the class and just note down क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी आपकी ठीक है अच्छा एडजेक्टिव्स में 5 चीजें आती हैं अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूं चलिए मैं आपको पहले उर्दू में समझा देती हूँ अच्छाई बुराई मिकदार तादाद और हालत 5 चीजें अच्छाई बुराई मिकदार तादाद और हालत ये 5 चीजें जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन की बताई जाएंगी जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाएंगे वो तमाम एडजेक्टिव्स कहलाएंगे
ठीक है जी। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन की अच्छाई, बुराई, मिकदार, तादाद या हालत को बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अच्छाई की बताऊं तो मैं बताऊं कि मिस सना एक बेहतरीन मौल्लिमा है। बेहतरीन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बुराई बताऊं, असलम असलम झूठा इंसान है। ठीक है जी। आप लोग बोलेंगे मिस जो है बेचारे असलम के पीछे क्यों पड़ गई हैं लेकिन असलम एक आसान नाम है जो बहुत इजीली जबान पे आ जाता है, इसलिए मैं बेचारे असलम को इतना परेशान कर रही हूँ। ठीक है, तो असलम एक झूठा इंसान है, झूठा। ठीक है, इंसान के बारे में बता रहे हैं जो कि नाउन है, लिहाजा ये एक बुराई होगी। फिर मैं बोलूँ कि हम 4 बहनें हैं, तो 4 क्या बता रहा है, तादाद को बता रहा है। प्लीज मुझे थोड़े से चावल दे दें, थोड़े से। ये जो थोड़े से ये क्या बता रहा है, मिकदार को बता रहा है। तादाद और मिकदार में क्या फर्क होता है, तादाद काउंटेबल होती है, मिकदार अनकाउंटेबल होती है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग को होगा। और हालत का मतलब होता है हालत। तो लिहाजा एडजेक्टिव्स आपके जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को बताते हैं। अब मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि हमारे पास स्ट्रक्चर में जो शुरू वाले जो सेंटेंसेस है एडवाइसेस के, वो सब वर्ब पे बेस करते हैं, दे आर स्टार्टिंग विद द वर्ब। एंड द लास्ट वो सेंटेंसेस जिसमें हमने स्ट्रक्चर में लिखा है बी प्लस एडजेक्टिव। जब आपको कोई एडजेक्टिव वर्ब की जगह इस्तेमाल करना होता है तो आप उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, या किसी नाउन को वर्ब की जगह इस्तेमाल करना होता है तो आप उसके आगे बी या कोई वर्ड लगा के उसको वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या है, ईमानदार। बी ऑनेस्ट मतलब ईमानदार बन जाओ या ईमानदार हो जाओ। अब मैंने आगे बीई का वर्ड लगा के इस ऑनेस्ट को वर्ब बना लिया। ठीक है जी, इज इट क्लियर। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, अपने आप से ईमानदार हो जाओ। बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो, दूसरों के लिए अच्छा जज्बा रखो, रहम का जज्बा रखो। बी काम इन ऑल सिचुएशंस, तमाम हालात में बिल्कुल सुकून में, यानी कि कोई पैनिक नहीं कीजिए। बी नाइस टू अदर्स, दूसरों के साथ बहुत अच्छे मामलात रखिए। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एज वाई नॉट टू डू में भी सेम यही है। हमारे पास डोंट प्लस बेस फॉर्म है, इसी तरह अवॉइड प्लस वर्ब आईएनजी है। ठीक है। अच्छा, डोंट ड्रिंक इराक, इराक बेसिकली इज अ काइंड ऑफ एन अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस है जो मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है जी, मिडिल ईस्ट में जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है जी। अच्छा, इस पर डोंट अंडर एस्टिमेट अदर्स, दूसरों को क्या करें, नीचा मत दिखाइए। डोंट गेट स्ट्रेस ओवर लिटिल वरीज, छोटी छोटी बातों के लिए परेशान मत होइए। और नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है अवॉइड नॉट टू डू एडवाइस में, अवॉइड गोइंग टू द बीच every time. Okay, avoid eating junk food, avoid drinking cool water at night. ठीक है, वैसे यहाँ पे कोल्ड होना चाहिए था, कोल्ड वाटर एट नाइट, ठंडा पानी जो है वो रात को सोने से पहले पीने का क्या कीजिए, एहतियात कीजिए या नहीं पीजिए। ठीक है, अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना या उसको, ठीक है, अवॉइड करना। बहुत कॉमन वर्ड है, हम तो माशाल्लाह से अंग्रेजी और उर्दू मिला के बोलने वाले लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे कुछ सेंटेंस वर्ड्स दिए हुए, ये सब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट एन होमवर्क, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो नोट डाउन कर लें। स्लाइड नंबर 11 में जो आपको वर्ड बॉक्स है इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए, विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन प्रैक्टिस योर एडवाइस टू डू एंड एडवाइस नॉट टू डू सेंटेंसेस एट होम। ओके ओके जी। अब आ जाइए रिक्वेस्ट पे। रिक्वेस्ट पे सेम वही, वी हैव गॉट रिक्वेस्ट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन प्लीज, स्टैंड अप प्लीज, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज ओपन द डोर। ठीक है, अगर आपको इसको और ज्यादा पोलाइट वे में बोलना है तो आप इसको किस तरह करेंगे, कैन यू प्लीज सिट डाउन, could you please stand up, could you please give me water, can you please open the door. ओके, इसी तरह मोर फ्रेंडली। और अगर आप जो आपका इनफॉर्मल वे में अगर आपको रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को क्या बोलते हैं, अरे बैठ जाओ यार, जस्ट सिट डाउन, जस्ट स्टैंड अप, जस्ट गिव मी वाटर, प्लीज यार मुझे पानी दो। ओके, तो ये आपका इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स है। जस्ट ओपन द डोर, प्लीज दरवाजा ओपन कर दीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट में आप प्लीज का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत काफी पोलाइट लगता है। काइंडली का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत पोलाइट लगता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास जो गिविंग इंस्ट्रक्शंस है इसमें 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है, रिक्वेस्ट, एडवाइस और एनकरेजमेंट। ठीक है, रिक्वेस्ट हमने कर लिया, एडवाइस हमने कर ली, अब हम आ गए अपनी एनकरेज वाली स्लाइड पे। ठीक है जी। तो इसके लिए मुझे भाई एक स्टूडेंट चाहिए वो जो क्विकली इसको रीड कर सके। एनीबॉडी हु इज वेरी क्विक इन रीडिंग, प्लीज रेज योर हैंड्स। Yes, Isha. Come on, we have to practice all these things, girls and boys, please. You can say this phrases to someone
who trying to decide whether to do something that seem difficult or risky. Give it a try. Go for it. Who know? It's Why a not? worth. Why not? Why not? Why not? It's a worth a shoot. It's a worth a trying. Us there if someone chance of success. What are you? What are you waiting for? Just do it. You can encourage someone to continue doing what they we are were already doing. There you go. Yes. Okay. G. Keep up the work. Good work. Keep it up. Good job. I am so proud of you. This phrase are way to tell us someone is affecting a hard decision. I will support you either a way. I will support you no matter what you decided. I am behind you 100%. It's a totally up to you. It's your call. वेरी गुड. ओके, जबरदस्त. अच्छा देखिए, एनकरेजमेंट कहते किसे पहले, एनकरेजमेंट कहते हैं किसी को जब कोई काम करने से डर लग रहा होता है या वो काम करने से पहले बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, तो ऐसे शख्स को हम क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं. करेज का मतलब होता है बहादुरी, ठीक है, और एनकरेज इसका वर्ब है. देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, मैंने आपको बताया था कि जिनको हम ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्री जो है एक वर्ब है, ठीक है, बट एग्रीमेंट एक नाउन है, एग्रीएबल उसका एडजेक्टिव है. ओके, तो ये आपस में कन्वर्टेबल है. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटी इसका नाउन है, ब्यूटीफाई इसका वर्ब है, ठीक है, तो ये आपस में भी कन्वर्टेबल है. तो इसी तरह एनकरेजमेंट एक नाउन है जिसे आप वर्ब बनाते हैं आगे ई एन लगा के, ई एन, ई फॉर एलिफेंट, एन फॉर नेस्ट. ओके, एनकरेजमेंट. इसी तरह आपके पास वर्ड है डेंजर. डेंजर का मतलब क्या होता है, खतरा. एन डेंजर, खतरे में आना. ओके, सर्कल, सर्कल का मतलब क्या होता है, दायरा. एन सर्कल, दायरा बनाओ. ओके, तो कुछ वर्ड्स को, तो ये एनकरेजमेंट जो है यहाँ पे ये वर्ब के सेंस में यूज हो रहा है, एनकरेजमेंट, ठीक है. अच्छा, एनकरेज करना, नॉट एनकरेजमेंट, एनकरेज. अच्छा, अब इसमें क्या होता है, एनकरेज आप किस तरह करते थे, बहुत सारे ऐसे अल्फाज है उर्दू में, जैसे हम कहते शाबाश, कोशिश तो करो, अल्लाह मालिक है यार, तुम अपनी हिम्मत तो आगे बढ़ाओ, है ना. तो यही सेंटेंसेस अब हम इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे हैं. गिव इट अ ट्राई, गो फॉर इट, व्हाई नॉट, क्यों नहीं भाई, ठीक है. इट्स वर्थ अ शॉट, अभी हमने पढ़ा था गिव अ शॉट. गिव अ शॉट क्या था, एक मौका मिलना, ठीक है ना. तो यहाँ पे हो रहा है कि एक मौका और अवेल करना. इट्स वर्थ अ शॉट. वर्थ का मतलब होता है कि, यानी कि ये ऐसी चीज है कि तुम्हें दोबारा ट्राई करनी चाहिए, ठीक है. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो. हर बंदे को अपना काम खुद करना है, चलो शुरू करो. एनकरेज करने के लिए हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं. देयर यू गो, कीप अस द गुड वर्ड, ओके, कीप इट अप, गुड जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी, ताकि बंदे को हम ये बता सकें कि भाई हम आपसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा खुश हैं, और अगर आपने और हिम्मत दिखाई तो हम आपसे और ज्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक है जी. नेक्स्ट वी हैव phrases to use when someone is having trouble. अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम क्या करते हैं, तसल्ली देते हैं. तो वो phrases, अगेन phrases क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. वो phrases जो हम किसी को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं वो क्या है. देखिए इससे पहले हमने वर्ड्स किए, अब हम इसकी phrases को कर रहे हैं. Okay जी, next student will read the slide for me please. Phrases to use when someone is having trouble, or phrases to inspire people. Please, anybody. I want anybody from the boys side to participate in this activity. रिजवान महमूद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. यस रिजवान. रिजवान आवाज आ रही है आपको? रिजवान प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस रिजवान. Ma'am, we can move for the another participant. Gigi, please, Yes. please go. Yes, yes, Muqaddas. Yes. Ji Hang Muqaddas. in there. Don't give up. Keep pushing. Muqaddas, you have some voice Keep issue. fighting. Stay strong. Never give up. Come on, you can do it. Okay. And the phrases to inspire people, किसी को मुतासिर करने के लिए जो जुमले बोले जाते हैं वो कैसे होते हैं? Follow your dreams. Reach Yes. for the stars.
Do the impossible. Believe in yourself. The sky is the limit. ओके अच्छा भाई मुकद्दस, इसमें से आपका फेवरेट वाला कौन सा जुमला है? मेरा फेवरेट तो है द स्काई इज द लिमिट। आपका कौन सा फेवरेट? Yes, yes, this one. द सेकंड वन? No, the sky is the limit. ओके वाओ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच मुकद्दस। अच्छा जी, तो ये वो फ्रेजेस है जो हम किसी को एनकरेज करने के लिए बोलते हैं। आप जब भी किसी से बात करें और वो आपसे नेगेटिव बातें करने लगे, ठीक है, दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक लोग कहलाते हैं पेसिमिस्ट लोग, ठीक है, और एक कहलाते हैं ऑप्टिमिस्टिक लोग। ऑप्टिमिस्टिक लोग वो होते हैं जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। अपॉर्चुनिस्ट मतलब वो हर चीज में ना पॉजिटिव चीज ढूंढ लेते हैं, ठीक है जी। और जो पेसिमिस्ट लोग होते हैं वो हर चीज में नेगेटिव ढूंढ लेते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग क्या बने, आप लोग वो बने जो कि चीजों में पॉजिटिव चीज ढूंढते हैं, ठीक है। तो जब हम पॉजिटिव चीजें ढूंढते हैं और खुद अपने माइंडसेट को कंट्रोल रखते हैं, तो फिर हम दूसरों को भी एडवाइस कर सकते हैं कि वो उस चीज को वो करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रॉब्लम में, किसी ट्रबल में, किसी मुसीबत में, तो आप उनको किस तरह एनकरेज करेंगे? हैंग इन देयर, वहीं पे रहो, क्या मसला है, डोंट गिव अप। गिव अप का मतलब होता है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। गिव अप का मतलब होता है तर्क करना, किसी चीज को तर्क करना। जैसे कहते प्लीज गिव अप स्मोकिंग, यार सिगरेट पीना छोड़ दो, ठीक, प्लीज गिव अप योर बैड हैबिट ऑफ यू सी ड्राइविंग वेरी रेकलेसली, तुम इतनी तेज गाड़ी चलाते हो, प्लीज इसको तर्क कर दो, ओके। नेक्स्ट वन है कीप पुशिंग। कीप पुशिंग का मतलब ये होता है कि अपने आप को अपनी मकसद की तरफ धक्का देते रहो, रुको नहीं कहीं पे। कीप फाइटिंग, लड़ते रहो, जो मुसीबत आया, अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, वो किसी ना किसी वक्त, बाज औकात अल्लाह पाक इंसान का इम्तिहान ले रहा होता है और देख रहा होता है कि मेरा बंदा जो है उसको इस चीज की कितनी ख्वाहिश है। और याद रखिए वो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है हमसे, लिहाजा वो कभी भी हमें वो नहीं करता, सिर्फ इंसान से वो क्या चाहता है, कोशिश, ठीक है। देन वी हैव स्टे स्ट्रॉन्ग, बने रहो, मजबूत बने रहो। नेवर गिव अप, कभी भी तर्क नहीं करो कोई चीज, कम ऑन यू कैन डू इट। यू सी, मेरे हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे बेस्ट 3 वर्ड्स जो हैं, लोग तो कहते हैं आई लव यू बट आई डोंट से दैट, हम मैं कहती हूँ यू कैन डू। यू कैन डू, यू कैन डू जो है वो इंग्लिश के सबसे बेहतरीन 3 वर्ड्स है, यानी तुम कर सकते हो। बस जब आप अपने माइंडसेट को इस तरह बना लेते हैं ना, फिर आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। लिटरली आप लोग की इंट्रोडक्शन की वीडियोस देखे, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू कि आप सबने पार्टिसिपेट किया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन्स हैं जो ये कंबाइंड होके आपको इंशाल्लाह ताला एक दिन अपनी मंजिल की तरफ ले जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा पागलपना, थोड़ा सा जुनून की जरूरत है सीखने के लिए। आपको घर बैठे आपने 4-5 मूवीज देख ली और आपने 2-3 किताबें पढ़ ली, इंग्लिश नहीं आएगी। इसके लिए एक शौक होना चाहिए। अकेले में बैठे अपनी जो सोचे हैं उनको इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें, ठीक है जी। ये सब आप करेंगे तो आपको इंग्लिश आएगी। सिर्फ क्लासेस अटेंड करने से। वो एक बहुत ही मजेदार लतीफा है कि खातून जो है मोटी सी, वो एक जिम में आती है, तो वो साहब कहते हैं कि भाई आप यहाँ जिम में क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा मैं रोज यानी हर महीने जो है रेगुलर बेसिस पे आपको फीस पे कर रही हूँ, आज मैं देखने आई हूँ कि मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा। तो यानी कि वो जिम आती नहीं थी, वो सिर्फ फीस पे करती थी। तो सिर्फ फीस पे करने से इंग्लिश नहीं आती, क्लास अटेंड करने से, क्लास के बाद होमवर्क करने से, होमवर्क पे मेहनत करने से इंग्लिश आती, ठीक है जी। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, नाउ फ्रेजेस टू इंस्पायर पीपल। इंस्पायर का मतलब होता है किसी को मुतासिर करना। ऐसे जुमले जिससे आप दूसरों को मुतासिर कर सकते हो या उनको मदद कर सकते हो कि वो आगे कामयाबी की तरफ और ज्यादा मेहनत करें। यू कैन से फॉलो योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को छोड़ो मत, अपने ख्वाबों के पीछे भागो और एक ना एक दिन वो तुम्हें जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव रीच फॉर द स्टार्स। आसमान में जो सितारे हैं आप उन तक पहुंचने की कोशिश करो। डू द इम्पॉसिबल, बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, है ना। ऐसे ही है ना, कोई भी चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ आपके माइंड। देखिए, हम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। जब अल्लाह पाक ने पहली अशरफुल मखलूकात को उतारना शुरू किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसके पहले वो थे, तो हमारे पास कोई भी सहूलियात नहीं थी, ठीक है ना। तो इंसान का जो ब्रेन था वो शुरू से क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या डिफेंसिव है। वो कोई भी रिस्क करने से इंसान को रोक लेता है। जब हम कोई भी, क्यों बहुत सारे जो ये इतने मशहूर लोग जो हैं, ये वो 2% जो मिलियनर्स हैं, ये कैसे हैं? ये अपने ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, जबकि हम लोगों को हमारे ब्रेन कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको अपनी ब्रेन उस पर वर्किंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, सो बिलीव इन योर सेल्फ, स्काई इज द लिमिट। ओके जी, नेक्स्ट।
नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारी एक्टिविटीज है। अब हम एक्टिविटीज पर आ जाते हैं। ठीक है, सिचुएशन क्या है, एक सिचुएशन देंगे जिसमें आपका फ्रेंड जो है फेल हो गया। अब नाउ फहद, आई वांट यू टू म्यूट ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है जी, और वो अब ठीक है, और वो हर आप जिसको आंसर है वो आंसर दे सकता है। प्लीज सबको अनम्यूट कर दीजिए फहद। एंड आई वांट वेरी strong discipline in the class, everybody, because we all are educated people and we have to show this. आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा होता है। ओके, तो आई वांट एवरीबडी टू बी वेरी लाइक वो करना है, पार्टिसिपेट करना है। ओके ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, द फर्स्ट सिचुएशन इज योर फ्रेंड फेल्ड द एग्जाम। आप उसको कैसे वो करेंगे जी मिसेस यास्मीन? मिसेस, वेरी गुड। ओके, एनीबडी एल्स? हेलो जी सर। हेलो जी कवि साहब, यू आर ऑडिबल। yes my friend don't worry next time inshallah try again. Try again, sky is the limit, follow your dreams, don't give up. So कितने सारे आप सारे बोल दें जितने आपको आते हैं। ठीक है कवि साहब? Yes. Okay, Don't give up. Very Please good. try every day. Try every time. Try every time. Learn every day. Reading every day. Excellent, excellent. This is the spirit which I want in my students. कि आप So- बोले तो अल्फाज जो है ना वो बिल्कुल मुंह से निकले जा रहे हैं, रुकना नहीं है हमने कहीं पे भी। थैंक यू सो मच कवि साहब। So don't worry. So don't worry. Every day to try to again to learn to speaking. Yes, great. Okay, next student. Yes, दुआ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी मेरा बच्चा। अगर दोस्त फेल हो गया एग्जाम में, उसको कैसे काउंसिल करेंगे, कैसे उसको रिक्वेस्ट देंगी, एडवाइस देंगी, एनकरेजमेंट देंगी? Believe yourself. वेरी गुड। Believe yourself and yourself. Follow your dreams, don't quit, don't give up. Please give it a new shot. Yourself and next time. yes, very good, excellent. Okay जी, next situation जो अब ये स्टूडेंट्स बोल चुके हैं, मैं चाहूंगी कि इसके अलावा दूसरे स्टूडेंट्स से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इन स्टूडेंट्स की तरफ हम फिर दोबारा जाएंगे। बहुत सारी सिचुएशंस है। द नेक्स्ट वन इज योर फ्रेंड इज गोइंग टू सिट फॉर द फाइनल एग्जाम। आप यहाँ पे उसको सबसे पहले तो ये बताना है कि उसको आप रिक्वेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, एनकरेजमेंट करेंगे क्या? Very good. He is going to sit for the examination. वो पेपर देने जा रहा है, तो आप उसको किस तरह वो करेंगे? जी वकास। encouragement. विश भी करेंगे उसको। Good wishes. ओके, गुड विशेस। ओके, और एनकरेज कैसे करेंगे? एडवाइस देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? Remain strong. वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट वकास। कि भाई स्ट्रॉन्ग रहो, अभी वक्त नहीं है कि आप वो। ठीक है जी, ओके जबरदस्त। ओके, नेक्स्ट है आस्क योर सिस्टर टू ब्रिंग सम वाटर। क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, एनकरेज करेंगे? वेरी गुड। ये तो नहीं बोलेंगे ना बहन से पानी मंगवाना और बोलेंगे फॉलो योर ड्रीम्स, तो बहन तो ड्रीम्स फॉलो करने चली जाएगी। रिक्वेस्ट करेंगे। यस जी, प्लीज गिव मी वाटर। yes, you can say please give me water. Would you mind bringing a glass of water for me? Okay, anybody else for this situation? Ask your sister to bring some waters. Could you please bring some water for me? Very good, excellent, shabash Anze. Anybody else? Yes, where are the other participants? अच्छा म्यूट कीजिए जो पीछे बैकग्राउंड में अगर लोग हैं तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। I would like to bring water for me. Very good. Would you mind bringing some water for me? Or could you bring some water for me? Excellent. Okay जी, next हमारे पास okay next हमारे पास है your friend is careless at work. ऑफिस की जॉब को वो सीरियस नहीं लेते। अब उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, एनकरेजमेंट करेंगे उनकी? Be careful. Next time it will be punished.
और आप उनको वार्न करेंगे और एडवाइस करेंगे, ठीक है जी। अपने दोस्त को आप क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। किस अल्फाज में करेंगे? Be careful. हम्म, Next time, if you have done, it will be punished. okay, okay. Or anybody else? Your friend is careless at your work. What advice will you give to your friend? जी, सना साहिबा कहाँ है सना मौजूद? ओके, नेक्स्ट सिचुएशन है, योर फ्रेंड इज लेजी स्लीपिंग ऑल द टाइम। उसको क्या करेंगे? एनकरेज करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे? एडवाइस करेंगे। क्या एडवाइस करेंगे वकास साहब आप अपने दोस्त को जो हर वक्त सोता रहता है? आप अपनी सेहत को खराब, आप अपनी सेहत को खराब। अच्छा, इंग्लिश में बोलिए फाज साहब, वकास साहब इंग्लिश में बोलिएगा प्लीज। योर हेल्थ खराब करने की समझ नहीं आ रही। अच्छा, और कोई एनीबॉडी एल्स हु कैन ट्राई, हु वांट टू गिव अ शॉट टू इट? अच्छा, मैं आप एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बोल के दिखाती हूँ कि ठीक है ना, आप किस तरह ये किस तरह का आंसर रिप्लाई में आप लोग से एक्सपेक्ट करिए, जिसमें आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली है कि योर एवरीबॉडी इज लिसनिंग, प्लीज देखिए मैं किस तरह आंसर बैक कर रही हूँ। योर फ्रेंड इज लेजी स्लीपिंग ऑल द टाइम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे ये मौका दिया जाएगा सर, तो मैं बोलूंगी कि आई विल गिव एडवाइस टू माई फ्रेंड इन अ वेरी पोलाइट वे, लाइक dear, please, I have noticed that you have been struggling with motivation lately, and I want you to say that I'm here to support you. Laziness is very common. Okay, it's a very bad habit, and you need to change your activities because God has given us life once. Okay, you need to, okay, so you need to believe in yourself, and please लाइक आप उसको इस तरह की भी एडवाइसेस भी दे सकते हैं कि भाई आप एक्सरसाइज जिम ज्वाइन कर लो, अगर आप बहुत स्लो हो, अपनी ईटिंग हैबिट्स आप चेंज कर लो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। नेक्स्ट हमारे पास है कि योर फ्रेंड इज क्राइंग बिकॉज हर मदर ब्लेम्ड हर फॉर ऑल हर मिस्टेक। अच्छा, एक इंग्लिश में बड़ी अच्छा वर्ड होता है ब्लेम गेम। इसका मतलब पता है किसी को? ब्लेम गेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लेम गेम? ब्लेम गेम, ब्लेम गेम का मतलब ये होता है कि एक बंदा एक पे, खासतौर पे हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है, बहू सास को, सास बहू को क्या कर रही होती है, इल्जामात लगा रही होती है, ये करती है इसलिए मैं ये करती हूँ, और अगर ये ना करे तो मैं ये ना करूं। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में ब्लेम गेम। क्या कहते हैं? ब्लेम गेम। यानी आप एक दूसरे को क्या कर रहे हो, कसूरवार ठहरा रहे हो या इल्जामात लगा रहे हो, और उसमें ये होता है कि जो आप टू द पॉइंट नहीं आते हो बात करने, बल्कि एक दूसरे पे इल्जामात में बात। अच्छा, एक और बहुत अच्छा वर्ड, ये सब वर्ड्स आप लोग नोट डाउन कर लें प्लीज। ब्लेम गेम नोट कर लीजिए। ब्लेम गेम का मतलब होता है एक दूसरे पे इल्जामात लगाना और कोई भी कारकर्दगी को आगे ना बढ़ाना, ठीक है। एक आपके पास वर्ड होता है विन विन सिचुएशन, विन, WIN, विन, फिर उसके अंदर हाइफन, छोटी सी लाइन, फिर WIN, विन। विन विन सिचुएशन का मतलब होता है किसी चीज का, किसी काम का एक ऐसा सोल्यूशन निकालना जिसमें दोनों पार्टियां बराबर की खुश हो, ठीक है जी। तो उसको हम क्या कहते हैं जी, भाई अब ये विन विन सिचुएशन हो गई है, वो पार्टी भी खुश है और ये वाली पार्टी भी खुश है, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज इंग्लिश में बहुत अच्छे वो है कैच 22। कैच लिखिए, ठीक है, और उसके बाद हाइफन डाल के 22 नंबर्स में लिखेंगे। कैच 22 एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, इसकी बहुत अच्छी मिसाल ये है कि आप जॉब करने जाते हैं, ठीक है, फॉर एन इंटरव्यू, यू गो फॉर एन इंटरव्यू एंड द इंटरव्यूअर आस्क्स यू फॉर एक्सपीरियंस, and they can say like we can't give you the job because you don't have any experience। तो आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं कि जब तक आप मुझे जॉब नहीं देंगे तो मुझे एक्सपीरियंस होगा क्या, कैसे, जब मुझे कोई जॉब देगा ही नहीं ये सोच के कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस तरह तो मैं पूरी जिंदगी भी एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकूंगा। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड कैच 22। क्या कहलाती है सिचुएशन? कैच 22। मैंने क्या क्या वर्ड्स बताया आपको? ब्लेम गेम, विन विन सिचुएशन और कैच 22। इसके अलावा एक चीज होती है डेडलॉक, जो कि आपने हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा सुना होगा, ठीक है जी, कि भाई वो सिचुएशन डेडलॉक हो गया, यानी दोनों फरीक में से कोई भी वो करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है।
अच्छा जी, तो इसके बाद आपके पास ये 2 सिचुएशन और हैं, ये मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ। कौन सी? योर फ्रेंड इज क्राइंग बिकॉज हर मदर ब्लेम्ड हर फॉर ऑल हर मिस्टेक्स, यानी उसकी मदर जो है वो उसको ही कसूरवार ठहराती है तमाम बातों के लिए, लिहाजा ठीक है। तो वो आपको उसको किस तरह आप उसको एनकरेज करेंगे, एडवाइस करेंगे या वो देंगे एनकरेजमेंट। योर फ्रेंड लाइक्स टू ट्राई समथिंग न्यू, अब आप उनको क्या कहेंगे, ठीक है, किस तरह मजीद एनकरेज करेंगे। ओके That's great. And जी, जी सर फहद, are you saying something Fahad? that's great. Okay, thank you so much. Thank you so much, Rizwan. Okay, ji, now we are coming towards our second activity. Imagine that you are one of the instructors in a famous museum. Give some useful instructions to the visitor using the patterns you studied. हमने अभी बहुत सारे पैटर्न्स स्टडी किए हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ये एक पिक्चर दी हुई है म्यूजियम की, ये वर्चुअल म्यूजियम है, ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, वेलकम टू द वर्चुअल म्यूजियम, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द म्यूजियम। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, अगेन आई एम रिपीटिंग, I kindly request you to follow my instructions. First and foremost, सबसे अहम और सबसे पहले, maintain self-discipline. Maintain self-discipline. Keep your mobile phones silent. Keep your mobile phones silent. Read manuals carefully. Manuals वो books होती हैं, ये booklets होती हैं छोटी सी जो आपको दी जाती हैं जब आप म्यूजियम विजिट करने जाते हैं, तो उसमें सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है, कौन सी चीज कहाँ पर है और वो क्यों मशहूर है, वो कब कितनी पुरानी है, ये सब डिटेल्स होती हैं। Don't touch the exhibited objects. Exhibited मतलब जो लगे हुए हैं एग्जीबिशन में, उनमें से किसी भी चीज को नहीं छुए, ठीक है। Don't make noise. शोर मत कीजिए। Don't take photos. तस्वीरें मत लीजिए, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है जिसमें नाउ आई वांट ऑल दोज स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया कि वो इस एक्टिविटी को रीड करें, वेलकम से लेकर फोटोज तक। जी फादर प्लीज ऐसे लोगों को भी अनम्यूट कीजिए जो बिल्कुल जिन्होंने क्लास में आज पार्टिसिपेट नहीं किया। वो कौन है, जरा उनको पहले बाहर लाइए। Rizwan. रिजवान ने तो किया है मेरे ख्याल से, और इसके अलावा He just take the participate in the one activity. Rest of the other activity he was quiet. अच्छा ओके, ठीक है ठीक है, दीजिए रिजवान को चांस दीजिए देन। Yes, Rizwan, please unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिजवान जी। जी बहुत वेलकम से एक्सेंट स्टार्ट के करना साथ है। ये वेलकम से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल क्या है, अब आप क्या है, इंस्ट्रक्टर हैं, इंस्ट्रक्टर को कितना ज्यादा लाइवली होना चाहिए ना। आपको म्यूजियम देखने लोग आए हैं, ये आपकी जॉब है कि आप लोगों को वेलकम करें और इंस्ट्रक्शंस दें, तो आपको एक्सेंट के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करना है, ठीक है। वेलकम टू द वर्चुअल म्यूजियम, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इस तरह करके चलें। कम ऑन रिजवान। Welcome to the virtual museum. I kindly request to you follow my instruction. First and foremost, maintain self-discipline. अच्छा Keep your सुनिए mobile रिजवान, phone रिजवान silent. रिपीट कीजिए। आई वांट यू टू रीड दिस सेंटेंस इन वन गो, इसको पूरे एक उसमें पढ़िए, ठीक है, तोड़ तोड़ के नहीं पढ़िए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉमा है, यहाँ आप रुक सकते हैं। मेंटेन सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटेन सेल्फ डिसिप्लिन, ये तीनों वर्ड्स आपको एक साथ बोलने हैं, ठीक है जी। अगेन Maintain self-discipline. वेरी गुड, शाबाश, फिर से। Maintain self-discipline. ओके Keep your mobile phone नाउ silent. नाउ जंप टू द नेक्स्ट वन। Read manuals carefully. Don't touch the object. Don't make Exhibited, noise. exhibited आखिर में ed, exhibited objects। Exhibited object. वेरी गुड, शाबाश Exhibited रिजवान, वेरी objects. गुड, Don't वेरी गुड। make noise. Don't take photos. Okay, okay, very good. Okay, okay. Thank you so much, Rizwan. Okay, ji. Thank Next, you. we have activity number 3. Choose one of the following and make 10 sentences out of. How to improve our English knowledge. Okay, give some advice to become a successful person. Encourage someone to practice the language every time. Give some advice to save money. अच्छा, स्टार्ट कैसे करना है, शुरू दिया हुआ है। अब हमारे पास 4 है, इनमें से कोई सा भी एक सेंटेंस आपको चूज करना है, एक लाइक हेडिंग चूज करनी है और उसके बारे में आपको कोशिश करनी है कि हमारी क्लास में इतना टाइम तो नहीं होगा, तो 2 से 3 जुमले आप बोलें, ठीक है जी। तो स्टार्ट करें फर्स्ट स्टूडेंट नंबर 1 से प्लीज। ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है, तो आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। कोई सा भी एक टॉपिक लेके उसके बारे में 2 पॉइंट एटलीस्ट आपको ऐड करने। कम ऑन जी। Yes, Dua.
Go, I have unmuted you, Remember, please. remember, every student has to take a part, okay, in this activity. This is the last activity of today's class. Yes, Dua. Yes, sir. Which one you are choosing, Dua? 1, 2, 3, 4. Give some advice to me. How to I can't hear you, Dua. I can't hear Yes, you. sir. How to improve our English channel. Okay, Dua, listen. नीचे sentence दिया हुआ है. I would like to give some advice to you on. अपना heading बोलिए और उसके बाद शुरू हो जाइए. नीचे जो sentence है उसकी मदद से आपने start करनी है अपनी conversation. Come on. Yes, ma'am. जल्दी. English general knowledge. No, again, आपको start करना है. I would like to give some advice to all of you on how to improve our English knowledge. पहले इस sentence को बोलिए, उसके बाद advice दीजिए अपनी. Yes, ma'am. How to would like to given some advice of all of you English general knowledge. Okay. अब आपकी advice क्या वो दीजिए. आप तो हमें suggestion देंगी, advice नहीं देंगी. Yes, sir. कैसे improve कर सकते हैं हम अपनी न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश बुक्स पढ़ें या क्या ब्रॉडकास्ट सुने, क्या करें बताइए हम दुआ हमें. You read in English books. ओके अभी फिर वही बात. अभी दुआ होल्ड ऑन मिस दुआ. हमने पढ़ा था कि जब हम किसी को भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड करते हैं तो हम डायरेक्ट दो तरीके हमारे पास, या तो एडजेक्टिव वाला था या वर्ब वाला था. यानी कि मैं वर्ब से रीड द बुक्स, आपने वर्ब से जुमला शुरू करना है. रीड द बुक्स, वॉच द मूवीज, स्पीक इंग्लिश, लिसन टू द ब्रॉडकास्ट. आपको सारे जुमले एक्शन वर्ड से शुरू करने हैं. चले दुआ. अगेन शुरू से बिल्कुल. आई वुड लाइक टू गिव यू सम से. I would like to given some advice for everyone. शाबाश. On. You read फिर भाई English यू books. क्यों बोल रही है? यू नहीं बोलना, डायरेक्ट रीड द बुक्स, रीड इंग्लिश बुक्स. Read the books in English and underline the different words. वेरी गुड, शाबाश. ठीक है. Yes, ma'am. अच्छा ओके, बहुत बहुत अच्छी अटेम्प्ट थी. एक्सीलेंट. आई एम सो प्राउड ऑफ यू दुआ. शाबाश. ओके एनीबॉडी एल्स प्लीज. नीचे जो चैट बॉक्स में आपके लिखा है ये आपका स्टार्टिंग सेंटेंस है. ओके Yes, Isha. Give some advice to save money. okay number 1. Utility saving. Isha, you have not started the sentence. अब मैंने कहा जो नीचे बॉक्स में जो दो सेंटेंसेस हैं इनमें से किसी एक सेंटेंस से आपको अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है. Okay. Never give up. Either you can start like I would like to give some advice to you on how to save money. ये कह सकती हैं आप, या आप कह सकती हैं let me give you some advice on how to save money. और उसके बाद आप अपनी एडवाइस देंगे. और एडवाइस किस तरह देंगे? आप वर्ब से शुरू करेंगी अपने तमाम इंस्ट्रक्शंस. ओके चलें गो ऑन. मैम मैं समझी नहीं, आप फिर से बता देंगे नेट इशू से. अरे कोई बात नहीं, मैं ही आपसे कह रही हूँ. आपको बॉक्स में जो रेड से मोटा मोटा लिखा हुआ है ये नजर आ रहे हैं, दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. जी मिस. अच्छा ये आपको ना स्टार्टिंग दी हुई है ताकि आपको आसानी हो. ठीक है, आप इनमें से कोई एक जुमला चूज कीजिए और इसका जो डॉट डॉट है ना इसमें आप अपना जो आपने चारों में से जो टॉपिक सेलेक्ट किया उसको ऐड करें. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. लेट मी गिव यू सम एडवाइस. समझ गई? ओके. और फिर जो भी आपको एडवाइस या आप हमें वो देंगी ना सजेशंस, वो आप देंगी किस तरह के वर्ब से स्टार्ट हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैसे सेव करने के बारे में दे रही है तो कीप योर मनी इन बैंक, डोंट एक्सपेंड मनी ऑन क्लोथ्स. सारे जुमले उसी तरह स्टार्ट होंगे जैसे हमने क्लास में प्रैक्टिस किए हैं. ठीक है ईशा? ओके गो अहेड. I would like to give some advice to utility saving. शाबाश, very good, excellent starting. I would like to give some advice to lunch a pack. Lunch a pack? I didn't get.
utility saving. आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे उर्दू में बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैम घर से लंच पैक करके जाएं। ठीक है, ओके। तो उसका आप ये आप इस तरह आप इसको इस तरह बोल सकती हैं, या तो अगर आप नेगेटिव है, डोंट ईट आउटसाइड, डोंट ईट ओके फ्रॉम द ऑफिस, आप ये कह सकती हैं। या अगर आप इंस्ट्रक्शन दें तो टेक योर फूड विद योर सेल्फ, टेक योर मील विद योर सेल्फ फ्रॉम योर होम। ओके ओके मैम। या तो आप डोंट से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस या किसी वर्ब से स्टार्ट करेंगे, बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ। और ये जो 2 लाइनें इनमें से किसी एक से आप स्टार्ट ले लें। कम ऑन क्विक। ओके ईशा, जबरदस्त जा रही है, शाबाश। एक और कोई एडवाइस दीजिए, मनी सेविंग की बहुत अच्छी एडवाइस थी। थैंक यू मैम। एक और। don't waste our money for trips. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट थे, एक्सीलेंट थे। ओके जी, नेक्स्ट कैंडिडेट। थैंक यू ईशा। Yes, Miss Yasmin. जी यास्मीन। यास्मीन पहले आप मुझे बताइए 1 2 3 4 में से आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है? First one. ओके जी। और नीचे के सेंटेंस में से आपने कौन सा चूज किया है? I would like to give some advice Okay. to read English books, वेरी गुड, improve your vocabulary, वेरी गुड। and practice on English language. आप मिरर को भूल गई, मैंने क्या बताया था अपनी फर्स्ट क्लास में, आपने डेमो क्लास अटेम्प्ट की थी। मिरर इज योर फ्रेंड, यू सी प्रैक्टिस योर इंग्लिश, यू सी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये देखिए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये पूरा एक फ्रेज है। मैंने आपको क्या क्या वर्ड्स नहीं याद करे, फ्रेजेस याद करे। एक्सीलेंट, शाबाश, थैंक यू सो मच मिस यास्मीन। ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट, नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है? Yes, जी next candidate Muqaddas. जी मुकद्दस। गर्ल्स आर माशाल्लाह वेरी एक्टिव इन द क्लास। I'm so happy for the girls. Yes, Muqaddas. Yes. जी मुकद्दस, कौन सा वाला आपने चूज किया है? How to improve our English knowledge. Sorry? How to improve our English knowledge. Okay, okay, fine, okay. Muqaddas, I would like to give you some advice to improve. Very good. Yes. जी, okay, okay, carry on. Shabash. I would like to give some advice to improve our English knowledge. Read books, read English books, watch English movies, work on accent. Shabash, very good. Okay. Clapping Muqaddas, very good. Okay. Do we have any other student who is willing to participate in this activity? Yes, Shanze. Ji Shanze. Yes, Shanze. Shanze, please unmute yourself. Okay, Wajia. Yes, Wajia. I would like to give some advice to how to improve our English knowledge. Okay. Stand up the mirror and give. Excuse me. Stand up the mirror का मतलब है कि आप शीशे को खड़ा कर रही हैं. Stand in front of the mirror. Stand in front of the mirror and say English speaking. Very good. And speak English. Say English speaking नहीं, क्योंकि speak तो खुद एक verb है. आप बोले speak English. Okay? English. And try to your kids say to English some sentences. Very good. Try to speak with your kids. Shabash. Very good. And your friends speak in English. Okay.
Okay. अच्छा वजिया, इसमें से कौन सा है जो आप खुद यूज करती हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए? Which one of the advice which you are giving to us you use or you have applied on yourself? I use the my kids. Okay, you speak English with your kids. Yes. And you are hitting two birds with one stone. एक तीर से दो शिकार, आपको भी इंग्लिश आ जाएगी, बच्चों को भी आ जाएगी, ऐसा ही है वजिया? Yes. Okay, thank you so much वजिया. Okay जी, so now we have got our last slide which is the homework. What advice would you give to your younger self? Record in 30 seconds to 1 minute video. Okay? अच्छा फहाद साहब प्लीज आप एक चार्ट बनाइए और जो स्टूडेंट्स अपने होमवर्क को नहीं सेंड कर रहे उनके आगे क्रॉस लगा के वो शेयर करना है हमें डेली, ठीक है जी? Yes, ma'am. Definitely, I will do this. I will do this. Thank you so much, Fahad. You see, I really thank Fahad for his support, and like he's like a younger brother to me, and he supports me a lot. So I'm so सबके सामने I'm very proudly I'm thanking Fahad for everything. You see, behind his support or front पे आकर like he's an amazing man. Thank you so much, Fahad. Thank you, ma'am. Thank you for your kind words, ma'am. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.